जी सर, टाइम हो गया सर, स्टार्ट कर लें क्लास। ओके ओके शफीक साहब, मैं देख रहा था स्टूडेंट्स को, मैंने कहा आप कहें तो ओके। और मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My name is Jaleel Ahmed and I am associate member of Cost and Management Accountants of Pakistan. The subject I am going to teach you is fundamentals of financial accounting, and currently I am working in Paktok, Marif International Schools and Colleges, Main Boys Campus, Lahore. I'm working over here as an examination controller of Cambridge section, and I am teaching here the accounting of O levels and A levels. My overall experience is of 11 years, and I started in 2009 my career from CFE group of colleges. Then later on, I joined another college, IBF, and then I taught in different universities. During this experience, I went to Mauritius. I have international experience over there. I used to teach ACCA courses and as well as ICAW courses. And I taught over there basically the accounting, management accounting, cost accounting, financial accounting, and then financial management. Here in ICMAP, this is our first class, and I will teach you fundamentals of financial accounting. You can raise the questions, and I will answer those questions at the end of the session during the last 10 minutes. Okay. This was my brief introduction. Now I want to tell you that you have joined Institute of Cost and Management Accountants, and this is, I think so, this is your first class. And I want to tell you first of all about the membership, that how will you become the member. First of all, you will have to clear the operational level papers that you will have to clear. Then after that, you will have to clear managerial level and strategic level, and then you will have to do some get some professional competencies after completing all courses. And these professional competencies, after getting these, and then after getting 3 years industrial exposure, you will become associate member of institute. After becoming the associate member, then you will have to get 5 years managerial experience to become the fellow member of the institute. Okay, this is the way that how you will become the member of Institute of Cost and Management Accountants. Now I would like to share with you the paper pattern. This is the paper pattern that you are going to appear most probably in Feb. Here there are two sections of this paper. Number one, there will be multiple choice questions, and these questions, there are three sections, A to C, and there would be 45 questions, and out of 45 questions, 20 questions will be of 1 mark, and 25 questions will be of 2 marks. Total marks you will get from MCQs, these will be 70 marks. The remaining paper will be of long-term questions, numerical assessment questions. In these questions, these will be long questions. There will be 3 questions, and in these three questions, every question will be of 10 marks. It means total there will be 30 marks, and you will have to attempt this 100-mark paper, and you will have to score 50% marks in this paper. This is the paper pattern.
okay, that you are going to appear in Feb. Then I would like to share the syllabus. Here, look at the part one. The part this is the part one, and the weightage of the part one is the 10%, and we will cover here the topics. These are the basically theoretical concepts, and we are going to cover some of these in this first lecture. In this part, we will discuss the accounting nature and objectives and financial accounting definition, cost accounting, management accounting, introduction to different terms. And then after this, there's another section. These are the all basic concepts. There's a part two. The weightage of part B is 50%, and we will we will start these after the completion of part one. It is not necessary that I will complete all the I will teach all the topics during initial lectures here. There are some concepts which I will teach you after completing some of the topics from part B. Okay, then the topics we are going to do here in this part B: source documents, then the second, double entry systems and ledgers, and then the trial balance, income statements and accruals and prepayments, tangible non-current assets, intangible non-current assets, and bad debts, provisions and contingencies, accounting for inventories, accounting for sales tax, accounting for payroll, bank reconciliation statement and pro forma bank reconciliation statement, and so on. There is another topic that is related to the errors. The part C, the weightage of part C is 40%. Okay. The weightage of part A is only 10%, but it doesn't mean that you will not focus on this part A. You will have to focus because you will learn the basic concepts from this area. After learning the basic concepts, you will be able to deal with the part B and then part C of the syllabus that contains all 90% of the weightage, part B and C. Okay, in part C we will do here the sole trader accounts, company accounts, manufacturing accounts, incomplete records, and then income and expenditure account, that is related to basically non-profit organizations. And then we'll do the statements of the cash flows, financial accounting ratios. Okay, this is the syllabus that we will do during till Feb. And in Feb, during the mid of the January, we will be able to complete the syllabus, and then after that we'll do some revision, we will do some mock, and after that you will appear in examination. Okay, now I would like to tell you the recommended books. Okay, you will buy
separate business entity. You must keep this in mind. It means that the business and owner are different. Okay, assets of the business will never be considered the assets of the owner. Liabilities of the business will never be considered the liability of the owner. They are separate entities, and we are doing accounting only for the businesses, not for the person. Okay, not for the owner. Here, first of all, the things which are owned by a business, normally land which is owned by a business, not owned by the owner. Okay, if the land is owned by some owner, it doesn't mean that that is the asset of the business. Then the building, if the building is owned by the owner, this is this will not be considered an asset. Okay, if that building is owned by the business, then that will be considered as a as an asset. Then the premises are collectively land and building. These are called building premises, and the premises are also the assets of the business. Then furniture which is used by a business for business purposes. आप जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, आप बैंक्स में जाते हैं, तो वहां पर जो भी फर्नीचर पड़ा होता है, दैट इज द एसेट ऑफ दैट बैंक or that business. Fixtures are the things which are attached in offices, like आपके AC हो गए, आपके fans हो गए, these are called fixtures. Okay, then fixtures and fitting and computers, these are all assets. Cash in hand, the cash which is available in the business premises for business use. And cash at bank, the cash that is available that is available in the bank account of the business. Okay, then inventories are the unsold goods. Inventory is the unsold goods at the end of the period. If you are running a business and at the end of the business there are some unsold goods, those will be known as inventory or stock. Then trade receivables are those persons to whom you have sold goods on credit. ठीक है, बिजनेस जब चीजें सेल करता है, आपने नॉर्मली रिटेलर्स देखे होंगे या आपने होलसेलर्स देखे होंगे, व्हेन दे सेल गुड्स, तो उन गुड्स को वो कैश में भी सेल करते हैं, उन गुड्स को वो क्रेडिट पे भी सेल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Okay, I'm telling you that what are the trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास वो लोग होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल की होती हैं. ठीक है, जब बिजनेस सेल करता है गुड्स, तो बिजनेस नॉर्मली ये करता है कि कैश में भी सेल करता है, क्रेडिट पे भी सेल करता है. ठीक है, अगर तो क्रेडिट पे सेल हो रही हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं, उनको नेम हम देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है,
दोज आर कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पर ना कुछ आप, मैंने कहा था वैसे तो मैं क्वेश्चन आंसर एट द एंड एड्रेस कर लूंगा, बट देर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द कासिम जावेद। ही इज सेइंग दैट द व्हाट इज द बुक नेम। तो वो मैंने बुक का नेम आपको बताया था कि आपने एएस लेवल की अकाउंटिंग परचेज करनी है। आई एम राइटिंग हियर अगेन, ओके, एएस लेवल अकाउंटिंग by Noman Malik. Okay, this is the book name. Okay, the second I told you that कि आपने जो प्रैक्टिस बुक लेनी है, प्रैक्टिस के लिए दिस इज द MCQs book. You will purchase the book of the same author, ठीक है, आपका जो सेम ऑथर होगा उसी से आपने परचेज करनी, उसी की परचेज करनी है। दिस विल बी P1 AS level and the author is Noman Malik. Okay, and you will purchase the article number. I am again telling you that the article number, what is the article number? Article number is 111. I hope के ओके ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अगर आप ऑनलाइन इसे चेक करें इंटरनेट पे। रिमशा जाहिद शी इज आस्किंग अबाउट दिस कि कहाँ से मिलेगी। ये आपको ऑनलाइन आप गूगल पे चेक करें, ये नुमान मलिक की अवेलेबल है बुक, और ये नॉर्मली स्टूडेंट रिसोर्स से मिल जाती है। ओके, आपको यहाँ से मिल जाएगी, यू कैन सर्च दिस ऑन गूगल, ठीक है, ये आपको इजीली मिल जाएगी। चलें ठीक है अहमद रज़ा, ओके शुरू में मैं आपको उर्दू में ही बताता हूँ चीज़ें, बट लेटर ऑन विल हैव टू यूज़ दिस लैंग्वेज बिकॉज आपको पेपर जो अपीयर होना है आपने वो इंग्लिश में ही लिखना है, वहाँ पर
रिसीवेबल्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स। एक आपके पास होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स और एक आपके पास अदर रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स को आपने गुड्स सेल की होती हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने उनको क्रेडिट पे चीजें सेल की हैं, आप उनसे फ्यूचर में पैसे ले लेंगे। अदर रिसीवेबल्स में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव प्रोवाइडेड लोन, आपके बिजनेस ने किसी को लोन प्रोवाइड कर दिया है, तो उस पे जो इंटरेस्ट अर्न किया है, इंटरेस्ट इज स्टिल रिसीवेबल, ठीक है, ये आपका हो सकता है, आप अदर रिसीवेबल्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप टर्म जो है वो यूज करें जो स्टैंडर्ड यूज करता है, स्टैंडर्ड में ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ये टर्म आप यूज करें, ठीक है, ये बेटर है। अकाउंट्स रिसीवेबल सम बुक्स में यूज हो रहा है, ठीक है, आप जब रीड करेंगे तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल का यही मतलब है। काशिफ इशफाक लोधी, ठीक है, हम कोई ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप का, एज आई टोल्ड बिफोर दैट वी विल प्रिपेयर सम ग्रुप, ठीक है, उसमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको नंबर दूंगा एट द एंड, तो एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, आपको मैं फिर उसमें ऐड अप कर लूंगा, या किसी एक स्टूडेंट को कह देता हूँ, वो आपका सीआर होगा एंड ही विल क्रिएट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हामिद सेज दैट एहसन रिजवान, जो स्टूडेंट रिसोर्स है ये आपको ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आपको इजीली वो बुक आपको ना ऑनलाइन भेज भी देंगे, ठीक है, पोस्ट कर देंगे आपके एड्रेस पे। और अच्छा, हामिद इज सेइंग दैट द एसेट्स दोबारा समझा दें, चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एसेट्स। ओके, लुक एट द एसेट्स। एसेट्स हमारे पास क्या है, एसेट्स हमारे पास वो चीजें होती हैं बिजनेस के पास जो बिजनेस की मलकियत होती हैं, ओनरशिप में होती हैं, ठीक है, विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस और विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं, हेल्ड बाय द बिजनेस एंड ओन्ड बाय द बिजनेस। बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि आप उनको बिजनेस को रन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एसेट्स आपके वो चीजें होती हैं। अब इसमें आपके पास बिजनेस के पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, जैसे आप देखें समटाइम्स आप कहीं जा रहे हो तो आपको एक कहीं प्लॉट वगैरह के ऊपर ना बोर्ड लगा नजर आता है कि ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की प्रॉपर्टी है, ये स्टेट बैंक की प्रॉपर्टी है, ये एचबीएल की प्रॉपर्टी है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, तो वो ऑनरशिप होती है, इसलिए उन्होंने लिखा होता है। सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी बिल्डिंग है, प्रीमिसेस हैं, फिक्सचर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, कोई भी फिक्स चीजें हैं, या इसके अलावा कोई उनके पास कैश पड़ी हुई है, कैश के अलावा उनके पास बैंक में पैसा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में, ऑनर के बैंक अकाउंट में, आप उसको एसेट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह कोई पीरियड एंड हो गया, उसके एंड पे कोई अनसोल्ड गुड्स पड़ी हुई हैं, जैसे आप देखें एक अगर पर्सन है वो सीमेंट का बिजनेस करता है, उसको बाय करता है और उसको सेल करता है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर उसके पास 100 बैग पड़े हुए हैं अनसोल्ड, दो दैट विल बी कंसिडर एज अ स्टॉक, ठीक है, तो वो आपका स्टॉक होगा, उसको आप कंसीडर करेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में कई दफा समझा चुका हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं इनका इसका मतलब है ये वो लोग होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल की हैं। बिजनेस क्या करता है, कैश ट्रांजैक्शंस भी करता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी करता है। तो जो बिजनेस जो है कैश पे सेल नहीं कर रहा, अगर क्रेडिट पे सेल कर दिए हैं, किसी कस्टमर ने कहा है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं विद इन 15 डेज 2 मंथ्स 3 मंथ्स कर दूंगा आपको पेमेंट, तो उसको कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है। गुड्स तो सेल कर दी बुक्स में, उसे ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर करते हैं, बिकॉज बिजनेस विल रिसीव मनी फ्रॉम दैट पर्सन इन फ्यूचर, ठीक है। एसेट्स की टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं।
इसमें आपने ये देखना है कि आपके पास जो करंट एसेट्स होते हैं वो विद इन अ ईयर यूज हो जाते हैं, विद इन 12 मंथ्स यूज हो जाते हैं। जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो आपके मोर देन 1 ईयर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके पास मोर देन 1 ईयर यूज होंगे, ठीक है। दोज आर नोन एज नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में जो भी आप परमानेंट बिजनेस यूज के लिए एसेट लेते हैं वो आपके आ जाते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, प्रीमिसेस है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग हो गए, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, जो आप परमानेंट यूज के लिए। इसी तरह आपने कोई कार्स खरीद ली है, आपने कोई बस खरीद ली है, जैसे आप उसके लिए आप वैन वगैरह परचेज कर रहे हैं एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए। इसी तरह अपने आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल परचेज कर ली है, जैसे आप कोई ट्रक परचेज कर लेते हैं, कोई लोडर परचेज कर लेते हैं अपनी गुड्स के मूवमेंट के लिए, दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन करंट एसेट। और द करंट एसेट्स हैं विद इन 1 ईयर यूज हो जाएंगे। उसमें हमारे पास कौन कौन से एसेट्स आते हैं? कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, इन्वेंट्री आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स आता है। ये वो एसेट्स हैं जो आप विद इन अ ईयर यूज कर लेंगे, इनका बेनिफिट आप ले लेंगे। तलहा हुसैन आप कहते हैं आपका क्वेश्चन है प्रिमिसेस क्या है, तो कलेक्टिवली लैंड एंड बिल्डिंग को आप प्रिमिसेस कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। आमिना शहजाद आपका क्वेश्चन है कि बुक कब परचेज कर लें? आप एज सुन एज इसको परचेज कर लें, बिकॉज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा स्क्रीन पे, आपके पास वही क्वेश्चन आपके पास भी होगा और आप इजीली उसको कर लेंगे, अदरवाइज आपको बाद में वो समझने में मुश्किल होनी है। रिमशा शायद ओके, वो तो मैं साथ साथ गाइड करूंगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा खुद, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे क्लास में क्वेश्चन शो करूंगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, आप लोगों को कुछ होमवर्क में दूंगा, फिर देन यू कैन आस्क दोज क्वेश्चन इफ देयर विल बी सम प्रॉब्लम, ठीक है। वो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मोहम्मद आदिल, टेंजिबल एसेट्स तो हमने अभी पढ़े नहीं है। टेंजिबल एसेट्स फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद नहीं नहीं आप मलिक मोहम्मद उस्मान, अकाउंटिंग की ही बुक लेनी है आपने, ठीक है। ये एसेट्स की कोई बुक नहीं है, अकाउंटिंग की बुक है। अच्छा, चलें फिर क्वेश्चंस में आता हूँ, क्वेश्चंस की तरफ आप जरा ये देख लें। लायबिलिटीज, सेकंड कॉन्सेप्ट ये होता है कि लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज बेसिकली क्या होते हैं कि आपके पास ना दो थिंग्स विच आर ओल्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है। एसेट्स जो होते हैं वो ऑनरशिप होती है, जो लायबिलिटीज होती हैं उसका मतलब है कि बिजनेस ने पेमेंट करनी है। बिजनेस ने क्यों पेमेंट करनी है? बिकॉज दीज आर द ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपने कोई सर्विस ली है या कोई गुड्स परचेज किए हैं जिनके अगेंस्ट आपने कोई पेमेंट नहीं की,
अच्छा, ये जो जैन अली हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट में नॉर्मली तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, लेकिन ना ये होता है कि अगर आप उस लिमिट से जो जितने टाइम लिमिट के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है उससे एक्सीड कर दें तो फिर चार्ज होता है इंटरेस्ट। उमैर अहमद इज सेइंग नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक ही चीज होते हैं, नहीं। लायबिलिटीज जो होती हैं ये तो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, और एसेट्स जो होते हैं वो आपके गुड्स होती हैं जो आपने ओन की हुई हैं, जो आपकी ओनरशिप, बिजनेस की ओनरशिप है। तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं, टोटली दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। साद मुस्तफा इज सेइंग दैट द बैंक ओवरड्राफ्ट लोन ही होता है। लोन का वर्ड आप नॉर्मली इसमें यूज नहीं करते, इसे लोन का मतलब होता है कि आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है किसी से ना, जैसे बैंक से लोन लिया तो वो आपने 5 साल 10 साल के लिए लिया है। लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो तो कुछ पीरियड के लिए होती है, कुछ मंथ्स के लिए होती है, ठीक है साद। उसैद, आपका क्वेश्चन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होता है। नहीं, एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता है, ये बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। दिस इज नॉट अ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द एम्प्लॉयज। इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज इलेबोरेट द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अगेन। मोहम्मद मुकर्रम, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आपको मैंने बताया, अभी भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा, कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो होते हैं इन ये कंपनीज इशू करती हैं, पब्लिक को इशू कर सकती हैं, किसी बैंक में इशू कर, किसी बैंक से उसके अगेंस्ट लोन ले सकती हैं, जिसके ऊपर ये मेंशन होता है कि कंपनी कितना लोन ले रही है, उस पर कितना इंटरेस्ट पे करेगी और कितने टाइम पीरियड के लिए ले रही है, ठीक है। अच्छा, इनमें से ना आप लोगों में से कोई एक बंदा जो है ना वो ऐसा करे कि वो एक व्हाट्सएप अकाउंट बना ले, बल्कि ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि अकाउंट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप कौन बनाएगा, ठीक है। विल डिसाइड दिस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए अभी तक हमने बेसिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों को, आपको जो जो मसले होंगे, एसेट्स में कोई मसले हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें एक है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, जिनके क्वेश्चंस मैं एड्रेस नहीं कर सका वो दोबारा क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि मैं उनको दोबारा एड्रेस कर दूं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक। लाइबिलिटीज जो हैं वो अभी हम पढ़ रहे थे कि लाइबिलिटीज जो हैं ये आपकी ओब्लिगेशंस होती हैं बिजनेस की, कि बिजनेस ने किसी को पेमेंट करनी है फ्यूचर में, उसने क्यों करनी है, उसमें टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज के देयर आर टू टाइप्स, लाइक आपके एसेट्स की तरह नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। if you are expecting to pay some loan or some debt after 1 year, ठीक है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे नॉर्मली ये होता है कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं 5 years के लिए, 10 years के लिए, जैसे घर के लिए भी लोन ले लेते हैं आप। इसी तरह बिजनेसेस ना अपने लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे होते हैं उसके लिए जो लोन लेते हैं वो बिजनेस ले लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। एंड द करंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर, ठीक है, आपने विद इन अ ईयर उनको पे कर देना है। अच्छा, विद इन अ ईयर जो पे करते हैं वो हमारे पास जैसे ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स हमेशा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ही होगी। आप किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर लेते हैं तो आपने ये नहीं करना कि अब मैं 2 साल बाद पेमेंट करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ, 3 मंथ आप पेमेंट कर देते हैं। देन द बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ डेज के लिए, 45 डेज के लिए भी हो सकता है, 30 डेज के लिए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है, इनका ना नाम वगैरह तो नहीं आ रहा,
इन्होंने कहा कैन यू रिपीट इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल जो होता है बेसिकली मैंने बताया कि आपने किसी को लोन दे दिया है, जैसे बैंक लोन्स इशू करते हैं तो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, तो इंटरेस्ट जो होता है वो रिसीवेबल है। अगर कस्टमर ने अभी तक पे नहीं किया तो दैट विल बी द एसेट ऑफ द बिजनेस। आपका उमर आपका आंसर भी दे चुका हूं कि इसका बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह का ये आंसर्स हो चुके हैं। मैं आप रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस। अच्छा, ओके अब देखें हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके बैंक लोन आएगा, डेट अगेंस्ट दैट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आएगा। आपको पेपर में वो क्वेश्चन में वो बता देगा कि ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है। या उसके आगे क्या करता है, जैसे आपका बैंक लोन लिखा हुआ है तो उसके आगे उसने डेट मेंशन की होगी कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो ये बता देगा। तो हम जो जो प्रोसीड करते जाएंगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी कि कौन सी चीज आपने कहाँ कैटेगराइज करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट है कैपिटल, थर्ड वन। ये आपने माइंड में रखना है कैपिटल। कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का मालिक होता है वो बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज कैपिटल। जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बिजनेस है, बिजनेस का नेम है फॉर एग्जांपल ABC, ये बिजनेस नेम है, दिस इज द बिजनेस नेम। ऑनर, ऑनर इज जुनेद फॉर एग्जांपल, जुनेद इज द ऑनर। अब ये क्या कर रहा है, इसने बिजनेस में फॉर एग्जांपल ही इन्वेस्टेड $100,000 इन द बिजनेस। अब ये जो बिजनेस में आया है, ये बिजनेस में ओनर ने पैसा दिया, दैट इज नोन एज कैपिटल, दैट विल बी कंसीडर एज कैपिटल। ऑनर जब भी बिजनेस में कोई चीज लेके आएगा, बिजनेस में कैश लेके आए, बिजनेस में बिजनेस के बैंक अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवा दे, या बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर ले आए अपनी पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल पैसों से, या बिजनेस के लिए कोई मोटर व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह कुछ भी परचेज कर ले और पर्सनल पैसों से परचेज करे, दैट इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। वो क्या होता है, कैपिटल होता है। कैश भी हो सकता है, बैंक में भी डिपॉजिट हो सकता है, या बिजनेस में वो कोई और एसेट भी ला सकता है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट मोहम्मद ताहा, कंडीशंस होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि नॉर्मली बिजनेस के क्योंकि पैसे उनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो बिजनेस का ज़्यादा पैसे उन्होंने बैंक में रखे होते हैं, तो बैंक फैसिलिटेट करता है ताकि वो अपने कस्टमर को रिटेन कर ले, ठीक है। और कोई कंडीशंस नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। मोहम्मद मुकर्रम, आई कैन वॉलंटियर, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट की कोई लिमिट, हाँ डेफिनेटली लिमिट होती है। आपके मोहम्मद अयाज का क्वेश्चन है, लिमिट होती है उसकी कि कितने आप अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं और कितने टाइम में आपने पे करना है। हनीफ, यू आर आस्किंग अबाउट के क्रेडिट और डेबिट का समझा दें, तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे इसको ना, ठीक है। तो क्रेडिट डेबिट जो है अगली अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, तो इसलिए आप उसकी टेंशन ना लें कि क्रेडिट डेबिट जो है वो हम कर लिए। फिजा इज सेइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस बता दें। फिजा, जो एसेट्स होते हैं वो आपकी ओनरशिप होती है, आपके मलकियत होती है बिजनेस की, ठीक है। और जो लाइबिलिटीज होती हैं वो बिजनेस ने पेमेंट करनी होती हैं, जो भी आपकी लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। जैसे आप कोई फर्नीचर परचेज करके ले आते हैं और उसके अगेंस्ट अभी पेमेंट करनी है, फ्यूचर में करेंगे, दैट इज योर लायबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली आपने बैंक से लोन वगैरह ले लिया, वो भी लायबिलिटी होती है।
Usama Hashmi is saying the land rent liability होती
ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जैसे आप देखें यूनिवर्सिटीज हैं वो स्टूडेंट से फी लेती हैं, दैट इज कंसीडर एज इनकम। तो इनकम को हम कैसे फिर कंसीडर करेंगे? इनकम को अगर आप रीड करते हैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, लुक एट मनी रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। आपके पास जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ये तो आपके पास जो प्रोवाइड ये जो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे आप होटल में जाते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप इसमें चले जाते हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स आपका चेकअप करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज। सिमिलरली अगर आपने फॉरेन वीजा के लिए अप्लाई करना है तो इफ यू गो टू द कंसल्टेंट दे प्रोवाइड यू द सर्विसेज। तो वो तो सारे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, वो जो भी पैसे लेते हैं दैट इज नोन एज द इनकम ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जैसे कि आप गुड्स सेल करते हैं उससे इनकम आती है, ट्यूशन फी कॉलेजेस लेते हैं दैट इज द इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेजेस सर्विसेज दे रहे हैं, एजुकेशन सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, ट्यूशन फी ले लेते हैं। सिमिलरली जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है ऑन लोन ग्रांटेड, जैसे देखें बैंक्स होते हैं, बैंक क्या करते हैं जब लोन ग्रांट करते हैं, लोन देते हैं तो उसके अगेंस्ट बैंक्स लोन रिसीव इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो जब वो इंटरेस्ट उस पर जनरेट करते हैं दैट इज नोन एज द इनकम, ठीक है। सिमिलरली आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस प्रोजेक्ट से आपको कुछ प्रॉफिट आता है, कुछ आपको डिविडेंड वगैरह कुछ आ जाता है, तो दैट इज नोन एज द इनकम, ठीक है। सिमिलरली अगर एक बिजनेस है या आपकी अपनी कोई बिल्डिंग है तो आप उसको रेंट पे प्रोवाइड कर देते हैं और उससे आप रेंट रिसीव करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज इनकम, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम? यू कैन टाइप, यू कैन आस्क इन क्वेश्चन। हाँ जी उसैद, आप कह रहे हैं कि अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ वो बिजनेस के लिए परचेज कर लेता है तो वो बिजनेस के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ना, वो कैपिटल ही होगा बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि क्योंकि बिकॉज ही इज यूजिंग द ओनर इज यूजिंग हिज पर्सनल अकाउंट फॉर बाइंग समथिंग दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल, ठीक है। आयशा अली खान, ड्राइंग्स मेड बाय द ओनर आर आल्सो इंक्लूडेड इन कैपिटल? नो, ड्राइंग्स जो होती हैं बेसिकली वो रिडक्शन होती है कैपिटल में, उसको हम ड्राइंग्स का ही नाम देते हैं, ठीक है। वो एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है, कि वो एडजस्ट कैसे करनी है, उसकी एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है। कैपिटल में इंक्लूड नहीं होते, कैपिटल से डिडक्ट हो जाती हैं ड्राइंग्स। अच्छा उसके बाद है जन्नत सलीम, शी सिंग दैट सर ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल की कंडीशंस सेम होंगी। कंडीशंस का सेम मतलब यही है कि कंडीशन लाजमी नहीं है कि अगर आपने पैसे किसी को सेल किए हैं गुड्स कस्टमर को क्रेडिट पे तो आप उसे कहें कि 20 डेज में पेमेंट करनी है तो आप परचेज करें तो वो भी आपको 20 डेज का क्रेडिट दे दे। वो हो सकता है आपको इससे ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हैं दोनों ही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद उसामा हाशमी, अगर हम साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करें मींस टू से कि शेयर्स बाय करें तो शेयर्स एसेट्स होंगे। अच्छा देखें उसामा, अगर आप बिजनेस है ना उसामा हाशमी, अगर आप किसी एक बिजनेस है आपका और आपका बिजनेस के थ्रू किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके एसेट्स ही कहलाते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी किसी और बिजनेस में दैट इज कंसिडर एज एन एसेट, ठीक है। अच्छा उसके बाद कौन है मोहसन अली, एसेट्स हमने कंसीडर कर लिए। एसेट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास ये है कि एसेट्स जो हैं वो बेसिकली ये है कि आपके ऑनरशिप होती है, जो बिजनेस की ऑनरशिप में चीज़ें होती हैं दोज आर नोन एज एसेट्स, ठीक है। उनको हम करंट और नॉन करंट में डिवाइड कर लेते हैं। करंट एसेट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, विद इन अ ईयर वो यूज हो जाते हैं,
और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड होते हैं, उनसे बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए लेते हैं। ट्रेड पेएबल्स, अक्सा मुश्ताक, जो ट्रेड पेएबल्स हैं वो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। ये आपके बेसिकली क्रेडिट सप्लायर्स हैं, आप जिनसे आपने सेल करने के लिए गुड्स, आपकी इंटेंशन ये है कि आप एक गुड्स आगे सेल करेंगी और आपने किसी से परचेज कर ली। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपका बिजनेस जो है ना वो रिटेल शॉप का है और आपने किसी से शुगर बैग्स ले लिए, और शुगर बैग्स अगर आपका इंटेंशन है कि आप कस्टमर को सेल करेंगे, और लेकिन अगर आपने वो क्रेडिट पे ले लिए हैं तो वो जो है वो आपका ट्रेड पेबल्स हो जाएगा। ठीक है। और के गुड देन मोहम्मद सादिद हुसैन रिपीट द इन्वेंट्री। अच्छा सादिद, जो इन्वेंट्री है ना उसका ये है कि ये आपके करंट एसेट्स होते हैं, ये अनसोल्ड गुड्स होती हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास बच गई हैं, आपने इनको सेल कर देना है। क्रेडिट और इंटरेस्ट में डिफरेंस बता दें। हसन इरफान, क्रेडिट और इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट बेसिकली ये होता है कि आपने सूद, जिसे हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स इन हमारी लैंग्वेज में सूद कहते हैं। क्रेडिट का मतलब है कि आपने उधार पे कोई चीज ले ली है, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रेडिट। ठीक है। और जो इंटरेस्ट है वो आप जो लोन वगैरह लेते हैं उस पे आपने पेमेंट जो करनी होती है एक्स्ट्रा, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। अबरार जीवानी, ड्राइंग्स जो होती हैं बेसिकली अभी हमने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन ड्राइंग्स ये होती हैं कि जो ऑनर बिजनेस में कैपिटल लेके आता है और बाद में वो विड्रॉ कर लेता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग। ठीक है। डेफिनेशंस या मियाँ उमर, डेफिनेशंस बेसिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट्स याद रखने इसमें। मोहम्मद फारूक, आपका क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, मैं चेक कर लेता हूँ, आप दोबारा उसको टाइप कर दें क्वेश्चन को। आयशा मुनीर सर, लाइबिलिटी का थोड़ा सा बता दें। अच्छा, लाइबिलिटीज बेसिकली आयशा मुनीर ये होती हैं कि आपने जो क्रेडिट पे चीज़ें ले ली हैं, या आपने बैंक से लोन ले लिया, या बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसे निकलवा लिए हैं, दोज आर नोन एज लाइबिलिटीज। ठीक है। या आपने किसी से क्रेडिट पे कोई काम करवा लिया, अभी पेमेंट नहीं की, दैट इज नोन एज ए लाइबिलिटी। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन हो गया, नहीं ये कोई